Hello friends, my name is Tabassum and I'm new on YouTube channel. If you haven't subscribed my channel, please subscribe, like and share. आज की जो वीडियो है वो है बहुत ज़्यादा ख़ास, क्योंकि ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ हिथ्रो एयरपोर्ट, जो कि काफ़ी अच्छा गया था। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इस बार, क्योंकि पिछली बार जो था 2011 में, आई स्टिल रिमेंबर दैट वाज नॉट गुड एट ऑल, बिकॉज मैंने बहुत चीज़ें, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर बहुत गलत दिया था, तो उसी की वजह से मुझको थोड़ा सा उन्होंने दे आस्क्ड मी टू सिट फॉर एटलीस्ट फॉर नॉट मोर देन 2 hours. आई स्टिल रिमेंबर देयर वर लाइक, एंड वी वर नॉट अलाउड टू टॉक टू एनीवन, not even who sits just next to me. Anyways guys, this one was far better, because इसमें क्या था कि इसमें मेरा माइंड प्रिपेयर था और मैं प्रिपेयर थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो क्वेश्चंस तो वही थे जो नॉर्मली होते हैं कि वेयर यू गोना स्टे, व्हाट इज़ योर कोर्स नेम, एंड हाँ, 2 क्वेश्चन थे जिनका आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और या यूँ कहें मुश्किल नहीं होता है, जस्ट यूज़ योर माइंड एंड दैट्स इट। तो मेरा क्वेश्चन पहला ये था कि उनका क्वेश्चन पहला ये था कि आफ्टर उनका क्वेश्चन पहला ये था कि you have already done level 7 diploma from here, because I can see on your passport there's another stamp and visa on tier 4 basis in 2011. Now you came again in 2014 to do another course, so why it's too much gap? Although they don't have, I think so, rights to ask this question. It's my choice. I can go there up to 10 times, 15 times, whatever. Lekin they ask, but we cannot say like that, why you are asking blah blah blah. No, we always reply in a nice way. We should reply in a nice way where they get satisfied and they give us visa. Stamp. Visa already we get, but stamp. तो उसका आंसर मेरा सिंपल यही था गाइस, कि पहली बार, क्योंकि जो पहली बार गई थी तो गलती हुई थी, गलत आंसर्स दिए थे। लेकिन हाँ, ये था कि जेन्युइन थी मैंने कोई ऐसा नहीं कि फेक स्टूडेंट आ रही हूँ। तो दे क्रॉस चेक एंड दे गेव मी स्टैम्प ऑन माई पासपोर्ट। बट आंसर पहली बारी का ये था कि यस, I came here after 2 years, but that time I didn't have any plan to stay longer in UK to do another course, because that time the requirement was like a diploma or something, where I was getting like job offer according to my studies, and I was not prepared for MBA, and I something like I mentioned like that. So in that case what they understood कि भाई हाँ, ये बंदी आई थी, इसका कुछ प्लान था, उसके लिए इसको डिप्लोमा चाहिए था और उसको वापस जाना था। अब वो वाले टाइम के क्वेश्चन उन्होंने ऐसे लिखते नहीं है सिस्टम में, कि वरना फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये था गाइस कि ओके, सो यू केम अगेन फॉर MBA कोर्स विच यू कुड डू इन 2011, बट you came after 2 years to do MBA degree. Okay, so why it's pre-sessional English course with MBA journal pathway? Sorry, my hair are some messy because it's early morning here. Okay, so answer was very simple answer I gave. Well, as I said last time, there was a requirement for diploma, but this time I already applied in many companies in HR or human resource or in admin department on a managerial level, but however they are looking for people, those who have international degree from any country. So of course I don't have any degree. I'm just graduated, and the diploma which is not enough for higher positions in India. So that's why I came here for MBA degree. So why third question एक और भी था guys, इसी से मिलता जुलता. Okay, I understand, but my question also, I also include one more question in this question. That's what she said. I guess I remember little bit. So well,
pre-sessional English course or exam, it's included with your course, I mean MBA degree. So why you want that? My answer was very clear to them, like, of course, first of all, guys, you should have your your documents handy, because what happened, some people thought and some students thought, okay, we just need maybe 2 or 3 according to our application, and the rest we will put in luggage. Do not put any document in the luggage bag. Why? Because they can ask any question. कहीं से भी क्वेश्चन उठाएंगे, वो पूछ लेंगे, और when and they will ask with evidence. Okay, so I always carry my documents in my baggage, which is like requirement is 7 kg per baggage for international. Okay, so मेरा आंसर यही था guys कि first of all I showed her my IELTS certificate, which was, I think so, which told this story actually, but still I had to clear her query or questions. So I answered that I got very nice band in total in IELTS exam. However, I got less band in reading component. That means, guys, you should have 5.5 as a minimum requirement, but of course I got 5, so which was not enough for them. तो इस केस में गाइस उसने बोला तो फिर आपको दोबारा देना चाहिए था. Well, I didn't have enough time. My course date was in March, and when I gave this exam was in maybe January or something. So आप ऐसा कुछ बोल सकते, मैंने ऐसे कुछ बोला था कि जनवरी कुछ में था, ज़्यादा मुझे याद है क्योंकि 2014 की बात हो गई है, and we are now 2020. So but still, remember things, I think so. That is जो, क्योंकि आप जो फेक नई चीज़ें करते हो वो आपको याद रहती हैं. तो मुझे यही याद है, जहाँ तक मुझे याद है गाइस, कि मैंने यही बोला था कि जनवरी में मुझे याद है कि मैंने अपना शायद IELTS का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरे बैंड आए थे 5, and I didn't. और another date in my hometown was like maybe in March or something, so I didn't have time to do another IELTS course. In that case, I contacted to university, and university offered me course with pre-sessional English exam. And in that case, ma'am, I will once I will clear English exam in university, then I will sit for MBA course. Simple. ज़्यादा घुमा फिरा के बोलोगे ना गाइस, उसमें क्या होता है कि आप को पकड़ लेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, एंड देन दे विल डू व्हाट दे वांट टू. सो यही क्वेश्चंस थे गाइस. इसके अलावा भी थे कि वेयर यू गोना स्टे के ऊपर भी है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑल्दो आई डिडंट स्टे इन लूटन in village area. I lived in London for 2 or 3 years, and then I moved to Nottingham for full time work. लेकिन गाइस, आपको एजेंट के साथ इतना अच्छा मेरा वो था, मिस्टर प्रशांत कॉलोनी. ही वाज लाइक सो नाइस. आई आस्क्ड हिम, मैं तो वहाँ रहूँगी नहीं, एंड मेरा कोर्स वहाँ है, मेरी स्टडी वहाँ है, कैसे होगा? तो उन्होंने ऐसे ही एक ईमेल शूट करवा दी मेरे से कि जस्ट शूट एन ईमेल to this village admin department. Village area is like a accommodation for students in Luton, जो कि यूनिवर्सिटी से 5 मिनट की दूरी पर था. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना गाइस, कि आप कहाँ रह रहे हो, किसके साथ रहोगे, कौन है आपका यहाँ पे, ये सब अगर आपको ये सब अगर आप इंक्वायरी दोगे कि अच्छा यहाँ पे कौन है, तो मे बी दे विल चेक देयर स्टेटस ऑल्सो. उस केस में क्या होता है कि फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है. तो फिर मैंने यही इन सब से बचने के लिए, क्योंकि अब उसका क्या लाइफ चल रहा है फ्रेंड का, मुझे क्या पता है ना. तो इन सब से बचने के लिए मैंने सिंपल यही किया कि येस, आई विल लिव इन विलेज एरिया इन लूटन, विच इज़ 5-minute वॉक फ्रॉम यूनिवर्सिटी. एज एविडेंस मैंने एक प्रिंट आउट ले लिया था गाइज, जिसमें था कि हाँ ये प्रिंट आउट में. सो उस ईमेल में मैं यही उनके साइड से जो रिप्लाई आया था गाइज, वंस यू विल रीच हियर वी विल प्रोवाइड यू एप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर अकोमोडेशन, वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला.
सो गाइस यही था, वो एक ईमेल कन्फर्मेशन था जो कि उससे वो सेटिस्फाई हुए थे। तो कहने का मतलब ये है गाइस, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पहली बात आप बैगेज में रखिए, लगेज में मत रखिए प्लीज़। दूसरा, आप चाहें तो अपना लैपटॉप भी रख सकते हैं। मैंने अपना लैपटॉप कैरी किया था अपने बैगेज में, क्योंकि ऑल टुगेदर 7 kg समथिंग होता है। दूसरी चीज़ गाइस, क्वेश्चंस कोई भी आए, पहली बारी में मेरा बहुत गड़बड़ हुआ था एंड आई फेल्ट वेरी बैड एंड समटाइम्स आई लाफ ऑल्सो, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस यू कांट फॉरगेट एंड आई स्टिल हैव इन माई माइंड एवरीथिंग इट्स लाइक सो फ्रेश, बट दिस टाइम वॉज फार बेटर। ऑल्दो 2014 और वो 2011 की बात है। तो गाइस मैं इस एरिया में इसलिए भी घूम रही हूँ क्योंकि माई मास्क इज़ विथ मी, बट मास्क लगा के ना बात नहीं हो पाती है एंड तो इधर पुलिस वगैरह नहीं आएगी। ये एक गली सी है, बट इट्स लाइक फुल एरिया ऑफ क्रीक व्यू। देयर इज़ अ लिटिल पार्क इन माई बैक विच इज़ लाइक यू कैन नॉट सिट इन द पार्क। दुबई में मैंने गाइस ये देखा है, आप पार्क में बैठ नहीं सकते हैं, लोग बैठ जाते हैं तो यहाँ पुलिस आ जाती है उठाने के लिए। हाँ, लेकिन आप पार्क के आसपास टहल सकते हो, उन्होंने वॉक का बना रखा है अच्छा खासा। गाइस सो मेरा इंटरव्यू, सॉरी आई चेंज माई टॉपिक, बट येस। सो गाइस यही मेरा क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस तो और भी रहे होंगे क्योंकि वो ऐसे तो जाने देते नहीं हैं, बट मेन क्वेश्चन ये होता है गाइस कि जब आप पहली बार जा चुके हो या 10 बार या फिर 2 बार 5 बार जितनी बार भी फिर आप जाना चाहते हो, उसके लिए आप क्वेश्चन ऐसा प्रिपेयर कर लो माइंड में क्या बोलना है। मैंने प्रिपेयर कर रखा था कि इस बार तो ये इंटरव्यू बीट करना विदाउट एनी नर्वसनेस और हेजिटेशन और एनी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि पिछली बार मेरे अंदर सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी एंड आई वॉज फ्रीकिंग नर्वस दैट टाइम एंड आई वॉज फ्रीकिंग आउट ऑल्सो, क्योंकि when immigration officer asks you to sit down for 2 hours, that means a lot. So that means we did some crime, but we didn't and we still not. तो बस यही है गाइस, क्वेश्चंस उनके होते हैं, आंसर्स आप ही को देने हैं और आंसर बहुत कम समय में देने होते हैं क्योंकि एक लॉन्ग क्यू होती है और उस लॉन्ग क्यू में ऑब्वियसली आपको उनके क्वेश्चंस का आंसर उस हिसाब से देना होता है। और बस यही होता है गाइस, थोड़ा सा आप प्रिपेयर कीजिए, माइंड को प्रिपेयर कीजिए। मैं फिर यही कहूँगी, जो भी यूके का देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। यूके में आजकल पीआर तो मतलब हमेशा निकली रहती है, वर्क परमिट निकला हुआ है जिसे कहते हैं पोस्ट स्टडी वर्क भी फॉर स्टूडेंट्स। वैसे वर्क परमिट में तो आप उन्होंने थोड़ा सा ईजी कर दिया है फॉर पीपल हु वांट्स टू गो फॉर वर्क परमिट ऑन tier 2 journal, tier 2 work visa, my sponsorship visa and tier 4 जिनका है स्टूडेंट वीज़ा, जो स्टूडेंट के बेस पे जाना चाहते हैं। आजकल यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा ऑफ़र कर रही है डिस्काउंट। मेरे टाइम पे मुझे याद है 2014 में आई गॉट 2000 pound एज अ डिस्काउंट ऑन फुल फीस। तो गाइस बस यही था, थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए माइंड को, थोड़ा सा माइंड सेट कीजिए अपनी चीज़ों को, लाइफ विल बी इजी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ थम्स अप, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब विद अदर्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।